Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope you are all fine by the grace of Allah Almighty, which is most beneficent and the merciful God. Students, today we are going to discuss about the last lecture of the chapter number 23, and in this topic, in this lecture, we cover the remaining part of the gene therapy topic. We know that insertion of healthy gene in place of faulty gene, it is called gene therapy. And gene therapy is of two types. There will be two main methods which we are used in case of insertion of genes. One is the ex vivo gene therapy and other one is the in vivo gene therapy. In case of ex vivo gene therapy, we carry the cells out of the body and we add the healthy gene in case of in place of faulty gene. But in case of in vivo gene therapy, we do not move out the defective cell, but we injected the healthy piece of the gene inside the body. In vivo name suggests that inside the body, which is the Latin phrase. In vivo, inside. Gene therapy, gene treatment. It means if there will be a fault occur in the gene, we treat the gene inside the body. So the definition comes that insertion of gene inside the body, it is known as in vivo gene therapy. Students, now we move to some diseases which are related to the in vivo gene therapy, and now we cure many diseases by using the in vivo gene therapy method. So let's come cystic fibrosis. Cystic fibrosis, basically it's a disease which is caused by a lacking of an enzyme, lacking of an gene. It's a chromosome and red part show it's a gene. Gene for what? It's a gene. It's a gene and its name is CFTR. CFTR mean cystic fibrosis trans membrane factor. सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन फैक्टर, बच्चों ये जो जीन है इस क्रोमोसोम पर, इसका काम ये होता है कि ट्रांस मेम्ब्रेन फैक्टर्स बनाना, मतलब ये है क्लोराइड आयंस. बच्चों क्लोराइड आयंस को इनसाइड मूव करवाना और क्लोराइड आयन को आउटसाइड मूव करवाना, ये इस जीन का काम होता है. लेकिन जब ये जीन नहीं ना हो और उसकी वजह से ये ट्रांस मेम्ब्रेन फैक्टर, मतलब बच्चों ये प्रोटीन जो काम करवाती है क्लोराइड को अंदर लेके आने का सेल के और सेल से बाहर लेके जाने का, तो ये काम नहीं हो तो बच्चों इस नतीजे में एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो बच्चों cystic fibrosis is a disease which is characterized by the lack of gene, and this gene basically makes a protein, and this protein names is the transmembrane factor or the transmembrane प्रोटीन. बच्चों आप लोगों को पता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है. लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स के चैनल होते हैं. वो प्रोटीन के चैनल बच्चों सोडियम आयंस को, पोटाशियम आयन को, क्लोराइड आयंस को, शुगर के मॉलिक्यूल को, ग्लूकोज को, वाटर को अंदर आने में और बाहर जाने में हेल्प आउट करते हैं. तो बच्चों सेल में ये ट्रांस मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स होती हैं
इनमें स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिनका काम क्लोराइड आयंस की मूवमेंट करवाना होता है, लेकिन जब इनको बनाने वाला जीन मिस हो जाए, डिफेक्टिव हो जाए, तो बच्चों ये प्रोटीन नहीं बनती। तो इसकी वजह से क्लोराइड आयन की जो मूवमेंट है उसमें डिस्टरबेंस आती है, और उस वजह से बच्चों हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो तबाह हो जाता है। इट्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। It's our respiratory system. We know our respiratory system consists of a tube-like structure which is known as the trachea and lungs. Students, you will see that there will be a two lungs, and in this case the trachea is a very clear, no other material which is present inside these bronchioles. But in case of this side, there will be a red substance deposit into the bronchioles, and this red substance is what? It is the mucus. It is a mucus, and it is produced due to the undisturbance, sorry, and this is produced due to the disturbance in the ट्रांसमेम्ब्रेन फैक्टर। ये बच्चों म्यूकस जो जमा हो गया है ब्रोंक्यूल्स में, ये क्लोराइड आयंस की बाहर और अंदर आने की जो मूवमेंट है उसमें अदल बदल की वजह से यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस हो गया। तो बच्चों अगर मैं आपको निकाल कर एक सेल दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक सेल दिखा रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये हमारा जो लंग है ना बच्चों, ये नॉर्मल लंग्स है, इसके अंदर कोई चीज़ नहीं है, मतलब इसके अंदर म्यूकस नहीं है जो क्लोराइड आयन की मूवमेंट में तब्दीली की वजह से पैदा होता है। तो बच्चों ये वाला जो सेल है इसके अंदर ये जो खाली हिस्सा होता है ना, नाली, उसको बोलते हैं ल्यूमन, ठीक है, इसको बोलते हैं ल्यूमन। मतलब ये अगर पेशेंट सांस लेगा, ये जो फेफड़ा होगा, ये जो लंग होगा, ये वाला, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा और इससे हम अच्छी तरह से लंग्स से सांस ले सकते हैं। लेकिन दूसरी जानब अगर इसकी बात करें तो इसमें बच्चों जो सेल है वो इन्फेक्टेड सेल है। इन्फेक्टेड सेल का मतलब क्या कि इसमें बच्चों म्यूकस जमा हो चुका है, ये म्यूकस है रेड वाला, इसमें म्यूकस जमा हो चुका है। तो बच्चों म्यूकस जमा होने की वजह से इसकी ये जो ल्यूमन है इनसाइड, ये नैरो हो चुकी है। क्या हो चुकी है? नैरो। तो बच्चों पता ये चला जब इस जीन की वजह से ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन ना बन रही हो, उस वजह से म्यूकस प्रोड्यूस होता है। म्यूकस प्रोडक्शन से जो ल्यूमन होती है वो नैरो हो जाती है। नैरो हो जाती है मतलब हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो बच्चों हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस बेसिकली इट्स अ रेस्पिरेटरी disorder. It's a respiratory disorder. बच्चों आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, यू पिक अप द मेन पॉइंट्स। बच्चों इसका ट्रीटमेंट हमने देखना है। हम इसका ट्रीटमेंट बच्चों किस तरह से करते हैं? वी ट्रीट दिस डिजीज सिस्टिक फाइब्रोसिस बाय यूजिंग ऑफ लिपोसोम्स। लिपोसोम्स, लिपो मतलब बच्चों ये देखें, ये ग्रीन आप लोगों ने अब सोचना है, बल्कि याद रखना है कि ग्रीन वाले बच्चों लिपिड हैं और रेड वाले प्रोटीन हैं। ग्रीन वाले लिपिड हैं और रेड वाले प्रोटीन है। फॉर एग्जांपल ये रेड, ठीक है, ये रेड, ये क्या है? शाबाश, प्रोटीन है बच्चों। और ये जो ग्रीन है इट्स अ लिपिड। ठीक हो गया। तो इसके इर्द गिर्द ये जो लिपिड और प्रोटीन की बॉडी है, इसके इर्द गिर्द बच्चों एक चीज़ चिपटी हुई है जिसको मैंने इधर लिखा हुआ है डीएनए है। तो हम इस डिजीज़ का इलाज करते हैं लिपोसोम्स, जो कि लिपिड और प्रोटीन की बॉडीज़ होती हैं, और उनके इर्द गिर्द हमारा डीएनए होता है। बच्चों यहाँ पर कौन सा डीएनए होगा, यहाँ पर कौन सा जीन होगा? यहाँ पर बच्चों हेल्थी जीन होगा, मतलब वो जीन होगा जो इस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को प्रोड्यूस करवा सके। समझ रहे हो? तो बच्चों हम लिपोसोम बॉडी के इर्द गिर्द उस जीन को लपेट देते हैं और फिर उस जीन को बच्चों हम डालते हैं, ये देखें, उस जीन को हम डालते हैं इसमें। और बच्चों ये क्या है? सोचें ज़रा, व्हाट इज़? इट्स अ इनहेलर।
अगर आप में से भी घर में किसी को ये इस्तेमाल किया हो कभी ज़िंदगी में, या किसी को करते देखा हो बच्चों, नाक के आगे रखकर या मुंह के आगे रखकर उसको दबाया जाता है और इसके पफ्स लिए जाते हैं। इट्स अ बेसिकली इनहेलर। तो इसका ट्रीटमेंट इन बॉडीज़ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट रखकर उनको इनहेलर में डालना और फिर उसको नाक और मुंह के ज़रिए से बच्चों इनहेल करना, बेसिकली इट्स का ये ट्रीटमेंट है। लेकिन ये बनती किस तरह से है, मैं आपको थोड़ा सा इसका बताता हूँ। बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स से बने हों। जैसे कार्बोहाइड्रेट एक किस्म का मॉलिक्यूल है, और लिपिड एक किस्म का मॉलिक्यूल है, प्रोटीन एक किस्म का मॉलिक्यूल है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स बना हो लिपिड के साथ मिलकर, तो बच्चों उसको आप लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिपिड। अगर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन मिली थी, आप लोगों ने पढ़ा था ग्लाइकोप्रोटीन्स। लेकिन एक जानिब हो लिपिड, दूसरी जानिब हो प्रोटीन, तो बच्चों उसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़े हैं। फॉर एग्जांपल लिपोप्रोटीन। बच्चों लिपो इसका मतलब है लिपिड, प्रोटीन तो आप लोगों को पता है कि प्रोटीन ही होती है। तो लिपिड और प्रोटीन की एक बॉडी ली जाती है। बिल्कुल उसी तरह बच्चों ये ग्रीन किसको शो करेगी? शाबाश, मैंने नीचे अभी बताया, ये लिपिड्स को शो करेगी बच्चों। ये देखें, ग्रीन लिपिड को शो करेगी और ये रेड किसको शो करेगी? प्रोटीन को। ये सिर्फ बच्चों समझाने के लिए है। तो लिपिड और प्रोटीन की बॉडी को लिया जाता है, फिर उसको एक सोल्यूशन में रखा जाता है। किस सोल्यूशन में रखा जाएगा? बच्चों उसको उस सोल्यूशन में रखा जाएगा जिसकी मौजूदगी में हम लोग डीएनए को उसके इर्द गिर्द लिपेट सकें। तो बच्चों हमने इसको एक सोल्यूशन में रखा। सोल्यूशन में रखने के बाद हम लोगों ने, हमें जो डीएनए चाहिए था, हमें जो जीन चाहिए था, हमने इस सोल्यूशन में उस डीएनए को रख दिया। ठीक है, उस जीन को रख दिया, और उस जीन ने विद द पैसेज ऑफ टाइम बच्चों इसके इर्द गिर्द एक कवरिंग बना ली, लिपट गया। और ये मैंने आपको यहाँ पर शो करवाया हुआ है। अब लिपोप्रोटीन के इर्द गिर्द जब डीएनए आ जाएगा, इसको बोलते हैं लिपोसोम। तो बच्चों लिपोसोम हमने बनाई किस तरह से? वी मेक द लिपोसोम इन अ बीकर which have solution, and in case of solution this DNA wraps around the lipoproteins, and this makes liposomes, and liposomes are the microscopic particles, and these microscopic particles are inserted into the inhaler, and this inhaler is used in order to spray in our nostrils, in our mouth, and at the end what is the result mean रिकवरी ऑफ डिजीज़। तो इस तरह से बच्चों हम लोग डिजीज़ की रिकवरी करते हैं। लेकिन ये मेथड बच्चों इतना एफिशिएंट नहीं है। ये मेथड इतना एफिशिएंट नहीं है, मतलब इसके रिजल्ट्स जो हैं बच्चों वो 100% दिखाई नहीं दिए। ये एफिशिएंट, नॉट एफिशिएंट। क्यों? बच्चों आप लोगों को पता है कि जो स्प्रे होती है, जब इसको आप लोग करते हो अपने नॉस्ट्रिल में करोगे, नथनों में करोगे, तो क्या होगा कि ये प्रॉपर सेल के अंदर नहीं जाएगी। प्रॉपर सेल के अंदर नहीं जाएगी, मतलब हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो हमें चाहिए होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस मेथड इज़ नॉट इफ़ेक्टिव। ये इतना इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है जितना एक्स वीवो मेथड इफ़ेक्टिव था। लेकिन बहरहाल इसके ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद बच्चों दूसरी डिजीज़ है कैंसर। कैंसर आप लोगों को पता है कि जब सेल में एबनॉर्मल डिवीजन हो जाए सेल्स की, उसको बोलते हैं कैंसर। मतलब बच्चों आप लोगों ने 2 केसेस पढ़े हैं, एक माइटोसिस पढ़ा है और एक आप लोगों ने मियोसिस पढ़ा है। शाबाश। क्या क्या होता है इसमें बच्चों? इसमें एक सेल जब 2 में डिवाइड हो, इसमें जब एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो जाए, इसको माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। लेकिन अगर ना माइटोसिस हो ना मियोसिस हो, बल्कि एक सेल 5 में डिवाइड हो रहा है, एक सेल बच्चों 10 में डिवाइड हो रहा है, एक सेल 1 में ही वो डिवाइड नहीं अच्छी तरह से हो रहा, तो ये जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन होती है, बेसिकली इस कंडीशन को हम बोलते हैं कैंसर। तो कैंसर 2 तरह के, कैंसर जैसा भी हो, इससे प्रोड्यूस होती हैं बच्चों छोटी छोटी सी थैलियाँ। थैलियाँ मतलब ट्यूमर्स। तो वो ट्यूमर्स आप लोगों ने 2 तरह के पढ़े थे, एक था बेनिन ट्यूमर और दूसरा था बच्चों मैलिग्नेंट। ठीक है,
एक बेनिंग ट्यूमर था और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर था। ये आप लोगों की बुक में नहीं है, लेकिन बच्चों सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जब जीन थेरेपी नहीं थी बच्चों, इस कैंसर का इलाज किस तरह से किया जाता था? इस कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता था कीमोथेरेपी की मदद से। कीमोथेरेपी की मदद से मतलब केमिकल्स की मदद से। कीमो का मतलब बच्चों केमिकल, और थेरेपी आप लोगों को पता है ट्रीटमेंट होती है। जब जीन थेरेपी नहीं थी तो केमिकल देकर कैंसर वाले पेशेंट को उसका इलाज किया जाता था। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो केमिकल्स होते हैं वो बच्चों टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करवाते हैं ऑन हेल्दी सेल्स या नियर बाय सेल्स। अब फॉर एग्जांपल बच्चों 10 सेल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है, चले मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर नहीं। बच्चों ये देखें, यहाँ पर हमारे पास ये रेड वाले जो हैं ये हेल्दी सेल हैं, ठीक है। दीज आर द हेल्दी सेल्स। तो इसके साथ ये बच्चों ग्रीन वाला एक सेल है कैंसरस सेल्स, ठीक है। ये अब आप लोगों ने इधर से समझ लेना है, ये कैंसर वाला सेल है और ये हेल्दी सेल है। होगा क्या, हम लोग कैंसर वाले सेल को प्रोड्यूस ख़त्म करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे केमिकल्स का। हम किसको देंगे बच्चों? केमिकल इस्तेमाल करेंगे। जब जीन थेरेपी नहीं थी तो केमिकल देने की वजह से ये सेल तो डिस्ट्रॉय होगा, साथ वाले सेल्स भी डिस्ट्रॉय होने का खतरा है। तो मतलब कीमोथेरेपी हैज़ डिसएडवांटेजेस। क्या डिसएडवांटेजेस? जब हम उसको बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो हो सकता है कि साथ वाले सेल्स को भी टॉक्सिक इफेक्ट दे, मतलब उनको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे। तो बच्चों इसका हल क्या था? इसका हल ये था कि हम जीन की मदद से इसका इलाज करें। हम वो जीन इंसर्ट कर कर हम इसका इलाज करें। तो बच्चों हम साइंटिस्ट ने वर्क किया तो इस नतीजे पर पहुंच गए। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी अचीवमेंट्स की। नाउ साइंटिस्ट ट्राई टू ट्रीट कैंसर्स विद इन विवो जीन थेरेपी, और वो कामयाब भी हुए किसी हद तक। बच्चों इसको डायरेक्टली तो नहीं किया जा सकता जीन थेरेपी को, लेकिन किस तरह से इसका इलाज मुमकिन है वो मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों एक जीन है हमारी बॉडी के अंदर, ट्यूमर सप्रेशन जीन, TSG। तो ट्यूमर सप्रेशन जीन को मैंने शो किया है ब्लैक से। दूसरी जगह पर हमारे पास हैं बच्चों मशहूर ज़माना स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स के बारे में तो आप लोगों को माशाल्लाह मालूमात होगी। बच्चों होता क्या है? होता ये है कि ट्यूमर सप्रेशन जीन को, और ये स्टेम सेल है, ये ट्यूमर सप्रेशन जीन है, इन दोनों को, ये जो ट्यूमर सप्रेशन जीन है बच्चों इसको लगाएंगे हम स्टेम सेल के अंदर, ठीक है। हम इसको लगाएंगे स्टेम सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमने ये जीन पकड़ के यहाँ पर लगा दिया। तो अब स्टेम सेल की बच्चों क्या खासियत होती है कि ये अपनी तरह के सेल्स बना लेता है और बीमारी को निकालने में मदद करता है। मतलब ये स्टेम सेल्स में ट्यूमर सप्रेशन जीन होगा तो बहुत सारे स्टेम सेल्स मिलकर उन ट्यूमर को सप्रेस करेंगे। लेकिन बच्चों ये डायरेक्टली भी सप्रेस कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर ये एक और तरह से अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसा कि मेक ट्यूमर्स मोर वल्नरेबल टू कीमोथेरेपी। मतलब आगे हमें एक ट्यूमर को, फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर को ख़त्म करने के लिए 1 मिलीग्राम केमिकल की ज़रूरत थी, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या होगा, ये जो हम लोगों ने स्टेम सेल्स दिए हैं, ये स्टेम सेल्स जाकर उन ट्यूमर सेल्स को आधा वीक ये करेंगे और 1 मिलीग्राम की जगह से आधा मिलीग्राम केमिकल इस्तेमाल होगा एक ट्यूमर सेल को मारने में। आई होप यू विल पिक अप द पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बच्चों उस नतीजे में इसको बोलते हैं मोर वल्नरेबल, कि ट्यूमर को मोर वल्नरेबल, ज़्यादा नुकसान की तरफ लेकर ये चले जाते हैं, ठीक हो गया। यानी कि आधा नुकसान उसका खुद कर देते हैं और आधा जो हम केमिकल्स लेते हैं उसकी मदद से, केमिकल की मदद से हो जाते हैं। और ये स्टेम सेल्स एक और काम करते हैं, ये प्रिवेंट भी करते हैं नॉर्मल सेल्स को। यानी ये ट्यूमर सेल्स जो होगा, स्टेम सेल जो होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जाके ट्यूमर सेल को ही नुकसान पहुंचाएगा, केमिकल्स की तरह ये साथ वाले सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बच्चों समझ रहे हो? इट आल्सो प्रिवेंट नॉर्मल सेल्स अराउंड ट्यूमर सेल्स from toxic effects of the chemicals which are used in the chemotherapy। तो कीमोथेरेपी में इस्तेमाल किए जाने वाले जो केमिकल्स हैं उनके टॉक्सिक इफेक्ट से नियर बाई सेल्स को ये स्टेम सेल्स बचाते भी हैं। और नतीजा क्या होता है,
अगर बोन स्टेम सेल्स या बोन मैरो स्टेम सेल्स प्रोटेक्ट हो जाएं, इनकी अपनी डेथ ना हो ट्यूमर सेल्स की वजह से, तो बच्चों ये इन्हांस कर देते हैं ड्यूरेशन ऑफ कीमोथेरेपी। मतलब ये अब हम उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा देर तक भी केमिकल्स दे सकते हैं और उस केमिकल्स की वजह से पेशेंट के नॉर्मल सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, क्योंकि उनको स्टेम सेल्स रिकवर कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर चांसेस जो हैं वो रिमूव करने के, ट्यूमर को रिमूव करने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों ये कैंसर का ट्रीटमेंट था। उसके बाद है कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी। बच्चों कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी क्या होती है? ये एक है कोरोनरी आर्टरी। बच्चों कोरोनरी आर्टरी अगर मैं हार्ट में आपको दिखाऊं, ये रफ सा स्ट्रक्चर है। ये जो रेड सी आप लोगों को आर्टरीज दिख रही हैं, बेसिकली दीज आर द कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी होती है और इसका काम होता है, वहाँ जिसका ये आर्टरी है बच्चों, जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। ये ऐसी ब्लड वेसल है जो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ये हार्ट के मसल्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करती हैं। अब बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था कि सारी की सारी जो आर्टरीज़ हैं वो ब्लड अवे लेके जाती हैं फ्रॉम हार्ट, और वेन्स इसकी तरफ लेके आती हैं। तो बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ट के अपने भी तो मसल्स हैं, तो हार्ट के मसल्स के अंदर बच्चों ब्लड लेके जाने वाली ये आर्टरी कोरोनरी आर्टरी है। और समझ रहे हो बच्चों, हार्ट के अंदर अगर बात हो तो वो वेन है, ये हार्ट के मसल्स के अंदर लेके जाने वाली खून आर्टरी है, तो इसको कोरोनरी आर्टरी कहेंगे। अच्छा खैर, ये पूरे के पूरे हार्ट पर लिपटी होती हैं। ये पूरे के पूरे हार्ट पर क्या होती हैं? लिपटी हुई होती हैं। मैं लिख कर यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखता, ओवरलैप की हुई होती हैं। पूरे का पूरा हार्ट इन्होंने लपेटा होता है। तो बच्चों ये कोरोनरी आर्टरी आप लोगों को अगर समझ आ गया है, तो एंजियोप्लास्टी क्या होती है? एंजियोप्लास्टी इज द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी अगर ये कोरोनरी आर्टरी में बच्चों कोई फॉल्ट आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट करना एंजियोप्लास्टी है मुख्तसर। तो ये नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, मतलब ये ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ये ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ से बच्चों, नॉर्मल रूटीन है। लेकिन मसला बना नीचे आके, इसी कोरोनरी आर्टरी को मसला बन गया कि यहाँ पर ये एक पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर आ गया बच्चों। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इट्स अ डिफेक्टिव कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पर हम यूँ कह लें कि ब्लड जब जम गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। अब यहाँ से अब ब्लड आएगा तो ब्लड इससे आगे जा नहीं सकता, रुक जाएगा। तो बच्चों इसको हम अब इसको अब हम ठीक करेंगे। वो किस तरह से? पहले तो ये होता था कि बैलून्स कैथेटर यूज़ किया जाता था। बैलून कैथेटर क्या है बच्चों? बैलून एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। मैं आपको एक सेकंड ड्रा करके दिखाता हूँ। अभी ये बच्चों बैलून है, ठीक है, इट्स अ बैलून, बैलून की तरह का स्ट्रक्चर। और कैथेटर बच्चों जिस तरह सिरिंज के आगे सुई नहीं लगी होती, ये कैथेटर है। तो बैलून कैथेटर को इकट्ठे इस्तेमाल किया जाता है इस तरह से। मतलब ये बैलून होता है बच्चों, इस बैलून को और इस सुई को इस तरह से लगाया जाता है और ये इसके आगे सुराख करती है, इसके आगे लगती है और सुराख करती है। सुराख करने के बाद क्या होता है, इसमें बच्चों इस तरह की कंडीशन हो जाती है, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। आप लोग पिक कर रहे हो ना बात को बच्चों? इस तरह की कंडीशन हो जाती है कि अब यहाँ से ब्लड अब पास करना शुरू कर देता है। यहाँ पर बैलून होता है, ठीक है, यहाँ पर बैलून होता है। बहुत थोड़ी सी जगह ये बनाती है, किसके लिए बच्चों? ब्लड के पास करने के लिए। वहाँ से ब्लड पास करना शुरू करता है, लेकिन जो ही ये बैलून आगे की तरफ मूव करता है बच्चों, ये पीछे से फिर बंद हो जाती है। तो ये एक परमानेंट इलाज नहीं है। तो परमानेंट इलाज के लिए हम लोगों ने क्या किया, अब बैलून कोटेड विद प्लाज्मिड, इस बैलून को ही इस्तेमाल करते हैं, बैलून कैथेटर को, लेकिन इस पर हम लगा देते हैं बच्चों प्लाज्मिड। और उस प्लाज्मिड पर मौजूद होता है एक जीन, और उस जीन का काम क्या होता है? उस जीन का काम होता है कि क्लॉट को रिमूव करना, जो क्लॉटिंग है उसको रिमूव करना। कैसे? उस जीन का नाम है बच्चों वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ
फैक्टर, इसको याद रखना है आप लोगों ने, इसको VEGF भी बोला जाता है। तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का मतलब क्या? वेस्कुलर बच्चों ब्लड वेसल्स की के लिए इस्तेमाल होता है। एंडोथेलियल मतलब कि जो इनसाइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको एंडोथेलियल कहते हैं। ग्रोथ मतलब कि ये इनसाइड सेल की ग्रोथ को तेज करेगा। इस जीन को हम बोलते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। तो होता क्या है बच्चों इस केस में, जब अच्छा एक बात और, जब कोरोनरी आर्टरी बच्चों इसके ब्लड पास रुक जाते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर ब्लड रुक गया है। ब्लड जब रुक जाता है, रुकने के बाद ही जब आगे जाता है, आगे जाते जाते पीछे से वो आर्टरी बंद होती जाती है, मामला फिर उधर आता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है बच्चों? इसका काम ये होता है कि प्रोलिफरेशन करना। क्या करना? अब आप लोग माशाल्लाह सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, कोई थोड़ी सी हया करके बताओ बच्चों प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? शाबाश। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है डिवीजन होना, और रैपिडली डिवीजन कर जाना, प्रोलिफरेशन होना, फैल जाना। तो ये ब्लड वेसल जिसका नाम कोरोनरी आर्टरी है CA, इसमें ये जमा हुआ है खून। अब इससे आगे ब्लड नहीं जा रहा, हमने यूज़ करना है बैलून कैथीटर, और उसके बाहर होगा एक DNA। जैसे बच्चों ये एक बैलून है और इसके साथ है कैथीटर, और कैथीटर के बाहर अब DNA को मैं यहाँ से इस तरह से शो करता हूँ बच्चों, ये DNA है, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको समझ लेना बच्चों, इट्स अ DNA। तो DNA क्या करेगा? यहाँ पर जमा हुआ है इसके बच्चों, ये जमा हुआ है इसके ब्लड। तो DNA क्या करेगा बच्चों? DNA जब यहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है, जब यहाँ पर DNA पहुँचेगा, रेड DNA, जब यहाँ पर DNA पहुँचेगा तो DNA इस ब्लड वेसल्स की जो साइड वाली सेल्स होंगे इनको प्रोलिफरेट करवाएगा। और बच्चों क्या करवाएगा? इनकी डिवीजन करवानी स्टार्ट कर देगा। मतलब होगा ऐसे, चले मैं ऊपर आप लोगों को ये छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ बच्चों। ऐसे हो जाएगा, इस तरह से होगा कि इतने हिस्से में बच्चों क्या जमा था? ब्लड क्लॉटिंग जमी थी, ब्लड क्लॉटिंग थी, सॉरी, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से इसने इस कोरोनरी आर्टरी के ये जो साथ वाले सेल थे, ये वाले सेल थे, इनकी प्रोलिफरेशन करवाई, इनको यानी कि 20 सेल्स बना दिया, ऊपर की तरफ एक्सपैंड कर दिया, इनको नीचे की तरफ एक्सपैंड कर दिया, और इनका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर दिया। और अब ब्लड आएगा बच्चों इस तरह से, यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा। ब्लड आएगा इस तरह से, यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से बच्चों हम कोरोनरी आर्टरी की एंगियोप्लास्टी करते हैं। हम इस तरह से बच्चों कैथीटर बैलून के ज़रिए से एंगियोप्लास्टी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं ब्लड वेसल्स का। उसके बाद बच्चों 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो एंड पे पॉइंट है ऑर्गेनाइट का। ऑर्गेनाइट बच्चों आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होते हैं जो इम्प्लांटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी का आप लोगों को पता होगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि दीज आर द स्मॉल सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू कल्चर्स दैट डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स। बच्चों यूज स्टेम सेल्स ही होंगे, उनसे हम टिश्यू कल्चरिंग करवाएंगे, एक ही तरह के सेल्स बनवाएंगे, और वो सेल्स सेल्फ ऑर्गेनाइज होंगे और वो एक ऑर्गन बनाएंगे, और इस ऑर्गन को हम एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट करेंगे, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में इम्प्लांट करेंगे, और बच्चों हम इलाज कर लेंगे। जैसे ये एक टिश्यू कल्चर है, इसमें सेल को ग्रो करवाया, और डायरेक्टली हम पेस्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली ग्राफ्ट कर सकते हैं इनटू इन्फेक्टेड ऑर्गन। बच्चों जल्दी से, हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, पार्किंसन डिजीज़ एक डिजीज़ है। आपकी बुक में बच्चों बड़ा छोटा सा लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। हीमोफीलिया में क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग जीन मिस होता है। क्या होता है? मिस होता है, यानी यहाँ पर खून बच्चों बिखरा बिखरा सा होता है। ये ब्लड वेसल है ना, इसमें बिखरा बिखरा सा खून होगा, यानी कि खून जिस्म से बाहर निकलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है वो इसमें नहीं होती, उसको बनाने वाला जीन नहीं होता। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या है? उस ब्लड क्लॉटिंग जीन को हम इंसर्ट करेंगे बच्चों, पहले उसको लेंगे, लेके हम उसको ऑर्गेनाइड में रखेंगे। ऑर्गेनाइड क्या होगा? एक आर्टिफिशियल ऑर्गन है। उसमें रखने के बाद हम उस आर्टिफिशियल ऑर्गन को एब्डोमिनल कैविटी में रखेंगे, और फिर एब्डोमिनल कैविटी में रखने के बाद बच्चों वो ऑर्गेनाइड के जीन्स डेवलप होके उस डिजीज़ को रिमूव करेंगे। तो
एंड पे है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ बच्चों एक ब्रेन डिजीज़ है, ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें ब्रेन के सेल्स एक केमिकल बनाना बंद कर देते हैं, एक केमिकल या फिर एक न्यूरोट्रांसमीटर। आई होप यू विल बी नाउ अबाउट द न्यूरोट्रांसमीटर। ये बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो नर्व सेल्स के एंड पर बनता है, उसको न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। और डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ब्रेन सेल्स में ऐसे सेल्स जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं बच्चों, वो किसी जीन की वजह से बना रहे होते हैं। लेकिन अब जब पार्किंसन डिजीज़ होगी तो ब्रेन में वो जीन डिफेक्टिव हो जाएगा जो न्यूरोट्रांसमीटर यानी जो डोपामाइन बना रहा है। तो डोपामाइन का काम क्या होता है? डोपामाइन का काम बच्चों होता है कि सेल में, बॉडी में वॉकिंग एंड टॉकिंग बिहेवियर को मेंटेन करना। न्यूरोट्रांसमीटर इट कंट्रोल, डोपामाइन इज द न्यूरोट्रांसमीटर दैट कंट्रोल्स वॉक एंड टॉक मूवमेंट ऑफ द पर्सन। तो बच्चों ये जब बनना बंद होगा तो इंसान के चलने का रवैया भी चेंज होगा और इंसान के बच्चों बोलने का जो अंदाज़ है वो भी चेंज होगा। तो बच्चों इसका भी इलाज किया जा सकता है। डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो हम डायरेक्ट इंसर्ट कर देते हैं ब्रेन में, क्योंकि इट्स अ इन विवो, हमने सेल को बाहर नहीं निकालना, हमने डायरेक्ट अंदर जाना है। तो इसकी डायरेक्ट सेल को इंसर्ट करके बच्चों हम इस डिजीज़ से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का जो लेक्चर है, बल्कि आज का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। तो बच्चों इंशाल्लाह ताला इसके बाद आप लोगों के पहला टेस्ट होगा सैटरडे को। तो उस टेस्ट में बच्चों आप लोगों को MCQs होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।